بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی کی ہدایت پر حازم بھنگوار نے عبداللہ ہارون روڈ اپنے سپرد لے لی۔ عبداللہ ہارون روڈ کو رول ماڈل سڑک بنانے کا مشن شروع کر دیا گیا۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر حازم بھنگوار نے عبداللہ ہارون روڈ اپنے سپرد لے لی۔ عبداللہ ہارون روڈ کو رول ماڈل سڑک بنانے کا مشن شروع کر دیا گیا۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر حازم بھنگوار نے عبداللہ ہارون روڈ اپنے سپرد لے لی۔ عبداللہ ہارون روڈ کو رول ماڈل سڑک بنانے کا مشن شروع کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر حازم بھنگوار نے عبداللہ ہارون روڈ اپنے سپرد لے لی ہے۔ اپڈیٹ کریں اور بتاتے چلیں، کمشنر کراچی کی ہدایت پر عبداللہ ہارون روڈ حازم بھنگوار کے سپرد کر دی گئی ہے۔ عبداللہ ہارون روڈ کو رول ماڈل سڑک بنانے کا مشن شروع کر دیا گیا۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت بہادر آباد مرکز پر سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کا اجلاس۔ ٹاؤن اور یو سی کے ذمہ داران اور کارکنان گلی محلوں میں عوامی رابطے بحال کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اپڈیٹ کریں، چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت بہادر آباد مرکز پر سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے شعیب مختار سے۔ جی شعیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت بہادر آباد مرکز پر سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں ٹاؤن اور یو سی کے ذمہ داران اور کارکنان کو گلی اور محلوں میں عوامی رابطے بحال کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے شہری سندھ کی سیاست میں ایک مضبوط اور منظم جماعت بن کر ابھری ہے۔ ہمیں ایم کیو ایم کا تنظیمی ڈھانچہ مضبوط اور ماضی سے کہیں زیادہ متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ کارکنان عوام کو تحریکی جدوجہد کے لیے متحرک کریں، جبکہ 22 اگست کے بعد جو ہے سیاسی کم فہمی کا شکار چند لوگوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ختم ہو چکی ہے، جو بالکل غلط ثابت ہوا ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہماری منزل اتنی اہم ہے کہ ہر کارکن اس کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تنظیمی نظم و ضبط کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو ہے اقدامات اٹھائے جائیں گے، جبکہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کی تیاریوں کے لیے تمام ٹاؤنز اور یو سیز میں موجود ذمہ داران کو تنظیمی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ہدایات بھی جو ہے ان کی جانب سے دی گئی ہیں۔ چیئرمین ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت بہادر آباد مرکز پر ہونے والے سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے اجلاس میں سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، سید امین الحق انچارج سی او سی فرقان اطیب و دیگر موجود تھے۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، اپڈیٹ یہ ہے کہ ترک بحری جہاز خیر سگالی دورے پر کراچی پہنچ گیا۔ کراچی بندرگاہ پر ترک بحری جہاز کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دورے کے دوران پاک ترک بحری تعاون اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے محمد خورشید رحمانی سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ترک بحری جہاز خیر سگالی دورے پر کراچی پہنچ گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کراچی بندرگاہ پر جو ہے وہ ترکی کے جہاز کا جو پرتپاک استقبال کیا گیا۔ دورے کے دوران پاکستان اور ترکی بحری تعاون اور پیشہ ورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ترک بحری جہاز کی آمد پاک ترک لازمات دوستی اور بھائی چارگی کی علامت ہے۔ جی محمد خورشید رحمانی، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پاک بھارت تناؤ، وفاقی وزارت تجارت کا اہم فیصلہ، بھارتی اشیاء کو ممنوع قرار دے دیا۔ کسی تیسرے ممالک کی طرف سے سمندری، زمینی اور فضائی راستے سے پاکستان سے گزرتے ہوئے ہندوستانی سامان کی درآمد پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ناظرین، اپڈیٹ یہ ہے، پاک بھارت تناؤ، وفاقی وزارت تجارت کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ بھارتی اشیاء کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ کسی تیسرے ممالک کی طرف سے سمندری، زمینی اور فضائی راستے سے پاکستان سے گزرتے ہوئے ہندوستانی سامان کی درآمد پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف کراچی اشرف خان سے۔ جی اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھا جائے پاک بھارت تناؤ، وزارت تجارت پاکستان کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ وفاقی حکومت قومی سلامتی اور عوامی مفاد پر بھارتی اشیاء کو ممنوع قرار دے دیا ہے، اور کسی تیسرے ملک کی طرف سے سمندری، زمینی اور فضائی راستے سے
पाकिस्तान से गुजरती हुई हिंदुस्तानी सामान की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जैसे कि अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड होती थी, उस पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। भारत से समुद्री, जमीनी और फिजाई रास्ते से पाकिस्तान से गुजरे हुए तीसरे मुल्क के लिए जरिए दरामद करदा भारतीय सामान पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तीसरे ममालिक की बरामदात समुद्री, जमीनी और फिजाई रास्ते से पाकिस्तान से गुजरती हुई भारत जाने पर भी पाबंदी आयद लगा दी है। पाबंदियां इन बरामदात पर लागू नहीं होंगी जिनके लिए बिल ऑफ लैंडिंग या लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुके हैं। वज़ीर तिजारत ने ये बात वाज़ेह की है कि यहाँ पे जो तमाम जो दरामदात और बरामदात जो ट्रांजिट ट्रेड में होती थी किसी तीसरे मुल्क के लिए, उसको मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। जी, मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। मौसम पर बरसाती नाला खस्ताहाल, पूरा नाला हिफाजती दीवार और छत से महरूम, कचरे से लबालब भरा हुआ है। इस नाले के करीब ही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट भी कायम है, जिसका बेशतर कचरा नाले में डाला जा रहा है। इलाके की खवातीन बोली, बरसाती नाला देखभाल न होने के बाइस खूनी नाला बना हुआ है, जहां रात के अंधेरे में गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों का गिर जाना मामूल बना हुआ है। बारिश हुई तो क्या होगा, ये सोच कर ही खौफ तारी हो रहा है। यहाँ पे हमने अपनी आंखों से बाइकें गिरती हुई देखी हैं और सारी कारें गिरती हुई देखी, कार तक गिरी है यहाँ पे। बारिश होती है तो क्या होता है? बारिश होती है, पूरा गटर सब बाहर हो जाता है, यहाँ से रोड पर आ जाते हैं, चलने तक की जगह नहीं होती है। यहाँ का इलाका बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ से चलने का रास्ता ही खत्म हो जाता है। यहाँ बारिश जब हो जाती है तो ये रोड और नाला बिल्कुल बराबर हो जाता है, चलने तक की जगह नहीं होती। यहाँ की आवाम, बच्चे इतने परेशान होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे एक लेडीज़ भी उस दिन यहाँ पे गिर चुकी है इस नाले में बारिश के पानी की वजह से। यहाँ पर दिन में इतनी कंडीशन ख़राब है तो रात में तो लाइट ही नहीं होती ना भाई। वैसे ही यहाँ पर लोड शेडिंग ही इतना है, ऊपर से यहाँ पर क्या नाम है नाले भरे रहते हैं, गंदगी इतनी होती है तो दिखाई तो कुछ देता ही नहीं है। ये नाला खुला हुआ है, बच्चे मदरसे के आते हैं वो गिर जाते हैं, इसीलिए इसको नाले को बनवाना चाहिए। माहिरीन कहते हैं बरसाती नालों की सफाई मार्च के महीने में कर ली जाए तो पूरा मानसून सीज़न सुकून से गुजर सकता है, मगर शहर में कई सालों से बारिश के दौरान ही बरसाती नाले की सफाई की जाती है, जिससे आवाम को रिलीफ मिलने के बजाय मज़ीद अजियत होती है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, सफूरा टाउन की यूसी 2 स्कीम 33 गुलजार हिजरी के 2 बड़े बरसाती नालों की 6 बरस से सफाई न हो सकी। बारिशों से कबल ही नालों की हालत अबतर हो गई। यूसी चेयरमैन जमशेद अली कहते हैं फौरी मौसर सफाई न की गई तो वसी इलाका ज़ेर-ए-आब आ सकता है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। बारिशों की आमद, नाले बगावत के लिए तैयार। गुलजार हिजरी केडीए स्कीम 33 के लाखों मकीनों को खतरात लाहक हो गए। वजह 2 बड़े बरसाती नालों की 6 साल से सफाई ना होना बताया जाता है। यूसी 2 सफूरा टाउन के चेयरमैन जमशेद अली बोले, नालों की सफाई के लिए हर मुताल्लिका फोरम से खतो किताबत की, मगर नतीजा सिफर रहा है। मई 2023 से हमने लेटर लिखना शुरू किए थे, इसमें हमने टाउन को भी लेटर लिखे हैं, इसमें हमने सेवरेज बोर्ड के जो एक्सीएन है उसको भी लेटर लिखा है, चीफ इंजीनियर को भी लेटर लिखा है सेवरेज बोर्ड के। इसी तरह से हमने ये लेटर जो है ना डीसी को भी लिखा है, कमिश्नर कराची को लिखा है। आज तक जो है ना इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सफाई नहीं हुई। वाइस चेयरमैन सिकंदर बलोच का कहना था कि नालों की सफाई के नाम पर माजी में जो स्ट्रक्चर तोड़ा गया वो जगह जगह से खतरनाक अंदाज में खुला हुआ है, हादसात जन्म ले रहे हैं। असल में जब भी बारिशें होती हैं हमारी कोशिश होती है कि लोगों के साथ खड़े हो जाएं और जो यूसी के वसाइल है उसको इस्तेमाल करते हुए उनके साथ मदद भी करते हैं। और लेकिन इस सिलसिले हमने 1.5 साल से पहले ही हमने लोगों को और हायर अथॉरिटी को मुसलसल लिख रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है और ये हादसात हो रहे हैं। आपने देखा होगा कितनी बड़े गड्ढे हैं, इसमें गाड़ियां भी गिर चुकी हैं, लेकिन कोई मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। बारिशों से कबल गुलजार हिजरी के बरसाती नालों की फौरी सफाई ना की गई तो बरसात में कई रिहायशी आबादियां ज़ेर-ए-आब आने और जानी और माली नुकसान का खतरा रिहायशियों के सर पर मंडला रहा है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मौसम गर्म होने के साथ ही शहर कायद में पानी का बहरान संगीन होने लगा। मुतासरा इलाकों में महमूदाबाद TP2 का इलाका भी शामिल है, जहां के मकीन 6 माह से पानी की शदीद किल्लत के मसाइल से दोचार हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ पानी की तलब भी बढ़ने लगी। महमूदाबाद TP2 के मकीन 6 माह से
बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि घर की जरूरियात को पूरा करने के लिए बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि पीने के पानी के लिए फी गैलन 70 रुपए का खरीदना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना है कि टैंकर का पानी इस्तेमाल कर करके आजिज आ गए हैं, जिससे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं बोरिंग का पानी खारिश और दीगर जिल्द की बीमारियों का सबब बनता है। पूरे रमज़ानों में पानी हमने टैंकरों से डलवाया है। ये हमारी मस्जिद है, इसमें भी पानी बड़ी मुश्किल है, बोर करवाया है, बोर का पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत परेशानी में। अब तनख्वाहें हमारी 20,000 या 25,000 तनख्वाह, उसमें हम टैंकर 9,000 कहाँ से डलवाएंगे। पीने के पानी तो ख़रीदा जाता है, जो तकरीबन 60 रुपये 70 रुपये की गैलन भेजते हैं, घर घर पहुंचाते हैं, और इस्तेमाल के लिए हमने बोरिंग कराया हुआ है। पहाड़ी इलाके का पानी कैसा होगा ये तो वही जाने जो इस्तेमाल कर रहा है, ये बड़े लोग तो नहीं कर रहे ना। तो ये है कि गरीब आदमी के लिए कोई फैसिलिटी दी जाए पानी की। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी नीचे चली गई, क्योंकि जगह जगह बोरिंग हो गई है। ज़्यादा बोरिंग से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, और टैंकर लेने जाओ तो 2 दिन 3 दिन मिलता नहीं है। इलाका मकीनों का वाटर कॉरपोरेशन से मुतालबा है कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाकर उनके मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ताजरों ने मानसून बारिशों से कबल नालों की फौरी सफाई का मुतालबा कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान जिला सेंट्रल हसीन कुरैशी कहते हैं कि माजी में बारिशें ताजरों के लिए जहमत बन चुकी हैं। इंतजामिया को पेश की अलर्ट किया जा चुका, मगर अब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। जबकि ताजरों का कहना है कि अगर बर वक्त नालों की सफाई न की गई तो कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो सकती हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। बारिश रहमत बनेगी या जहमत, ताजिरों ने मानसून से कबल नालों की सफाई यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान जिला सेंट्रल हुसैन कुरैशी का कहना है कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बावजूद मुताल्लिका जिला इंतजामिया अब तक मुतहर्रिक नजर नहीं आ रही। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बर वक्त नालों की सफाई ना की गई तो बाजारों में पानी जमा होने से न सिर्फ ताजिरों को माली नुकसान होगा, बल्कि खरीदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मार्केट और उनके अतराफ में जिस तरीके से पानी खड़ा और जमा हो जाता है, उसका हमेशा से यही बात कही जाती है कि भाई नाले चौक थे या नालों की सफाई नहीं की गई या कचरा बच गया। तो ये सारे इकदाम जिस तरीके से पेशन गोई होती है, तो वैसे भी उसके अलावा भी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जो है ना इन सारी चीज़ों पर तवज्जो दे। दुकानदारों ने हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारों से मुतालबा किया है कि फौरी इकदामात किए जाएं ताकि मानसून सीजन के दौरान शहरियों और ताजिरों को परेशानी ना हो। यार कराची शहर का क्या बताऊं, कुछ भी यानी कि इधर कोई सूरत हाल नहीं है। हर बंदा अपनी जेब भरने में लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना आप। बारिश का ये है कि यहाँ पे भले बारिश हो या कुछ भी हो, समंदर बनना है, समझ रहे, कोई काम नहीं है। बस अपना समझ लें गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। कराची के ताजिर कहते हैं कि वो कारोबार चलाना चाहते हैं, पानी में बहाना नहीं। सवाल ये है कि क्या इंतज़ामिया वक्त पर जागेगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर आला सिंध को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 16 अप्रैल ता 4 मई की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश कर दी गई। हेलमेट न होने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 31,677 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों की 2,719 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वज़ीर आला सिंध को आगाही दी गई कि गफलत और खिलाफवर्जी पर 104 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। लापरवाही, ओवर स्पीडिंग पर 1 FIR दर्ज की गई। गलत सिमत में ड्राइविंग करने पर 33 FIR दर्ज की गई। 311 गाड़ियों कोर्ट को तहवील में दे दी गई। 311 ड्राइवर गिरफ्तार किए गए। बगैर रजिस्ट्रेशन 23 गाड़ियाँ जब्त की गई। LPG CNG की 32 किटें जब्त की गई। वज़ीर आला सिंध ने IG को अहकामात दिए कि कानून चिकने पर कोई रियायत नहीं दी जाए। हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, हादसात से बचाव मुमकिन बनाया जाए। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन के सदर मोहम्मद सईद शेख की गवर्नर हाउस में मुलाकात। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक ह्यूस्टन के मेयर की जानिब से ह्यूस्टन शहर की तारीखी मोहर गवर्नर सिंध को पेश की गई। मोहम्मद सईद शेख ने कहा कि 1840 में ह्यूस्टन के मेयर और सेनेटर डॉक्टर फ्रांसिस मोरचोनियर ने यह तारीखी मोहर जारी की। मुलाकात में ताल्लुकात के फ़रोग, IT ताउन और फलाही मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि गवर्नर हाउस में 10 लाख से ज़ायद अफराद में राशन तकसीम किया जा चुका। हर माह 35,000 सफ़ेद पोश ख़ानदानों को भी घरों पर राशन फराहम किया जा रहा है। मोहम्मद सईद शेख ने कहा कि कामरान खान जसूरी अवामी खिदमत का हकीकी चेहरा हैं। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, LPG की कीमत में 10 रुपये किलो की कमी, कीमत 260 रुपये किलो से कम होकर 250 रुपये किलो पर आ गई। शहरियों ने कीमतों में कमी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। बोले हुकूमत कुदरती गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाए ताकि LPG के इजाफी अखराजात से बचा जा सके। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। गैस बंदिश से परेशान कराची के शहरियों के लिए बड़ी खबर। LPG की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो की कमी कर दी गई। नई कीमत 260 रुपये से कम होकर 250 रुपये फ़ी किलो हो गई। LPG सस्ती होने पर किसी हद तक शहरी भी मुतमईन दिखाई दिए। बोले कीमतों में कमी तो अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि गैस की फराहमी को भी यकीनी बनाए ताकि हमें सिलेंडर खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। शहरियों का कहना है कि अगर कुदरती गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए तो न सिर्फ LPG पर NSR कम होगा बल्कि इजाफी अखराजात से भी बचा जा सकेगा। गैस की शार्टिंग घरों के अंदर नहीं आ रही है, लाइनों में गैस नहीं आ रही है। गैस जो है यहाँ पे बस दुकानों पे मिल रही है, घरों के अंदर भी जलाने के लिए दुकानों से ले जाना पड़ रहा है। रेट 30 रुपये कम हुआ है, अभी भी कहीं 260 है, कहीं 240 है, कहीं 250 भी है। कराची के शहरियों को वक्ती रिलीफ तो मिला, लेकिन असल कामयाबी गैस की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने में ही होगी। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं, शहर कायद में सब्जियों की सरकारी और बाजारी कीमतों में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है, लेकिन सरकारी कीमतों पर आज भी अमल दरामद ना हो सका। सब्ज़ी फरोश कहते हैं कि सब्जियों की कीमतों में कुछ हद तक कमी आई है। देसी लीमू की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। कीमतों में भाईजान बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे आलू अभी पहले जैसे धरना चाह रहा था, आलू 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो वाइट वाला हो गया था। लाल का जो आलू है उसकी 120 की पोजीशन हो गई थी, 100 रुपये किलो। अभी वापसी लाल आलू जो है वही 60 रुपये किलो तक आ गया है और वाइट आलू जो है 50 रुपये किलो तक आ गया है। कीमतों में बहुत फ़र्क है, वापसी आ चुका है। जैसे उस टाइम पे लौकी 150 रुपये किलो की थी, अभी लौकी वापस 60 रुपये 50 रुपये किलो हो गई है। ऐसे खीरा भी सस्ता हो गया। तकरीबन आलू टोटल सब्ज़ी जितनी भी है सब सस्ती हो गई है, आधा आधा फ़र्क आ गया है। लीमू तो भाईजान सब सिंध का है, जैसे टंडोवाला यार है या कोई भी सिंध के इलाके में वहाँ से लीमू आ रहा है। लीमू की जो ना ओरिजिनल लीमू है ना देसी, इसकी पैदावार बहुत कम है। जो दूसरा लीमू आ रहा है पंजाब साइड से, वो जमेरी बोलते हैं उसको, वो 2 नंबर लीमू था, वो भी ख़त्म हो चुका पंजाब का। पहले वो ज़्यादा आ रहा था, इस वजह से थोड़ा लीमू कम था। और गर्मी शदीद ज़्यादा, लीमू का जो ना चलत भी ज़्यादा है, लीमू ज़्यादा लोग पी रहे हैं। और कराची में साहिल सिर्फ पानी की सरहद नहीं, ये उम्मीद की आखिरी लकीर है जहां शहर थमता है और दिल संभलता है। रोशनियों के शहर की मकीन यहाँ छुट्टी के रोज़ ज़रूर डेरे डालते हैं। साहिल की रौनक के हवाले से जानते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। यह है कराची का सी व्यू, जहाँ हर तबके का फर्द अपनी परेशानियों को लहरों के हवाले करने आता है। यहाँ शोर होता है लेकिन सुकून वाली लहरों का। बच्चे, बुजुर्ग, आशिक, शायर, सबको समंदर अपनी कशिश से बांध लेता है। छुट्टी वाले रोज तो यहाँ मेले का समा होता है। बड़े और बुजुर्ग चलकदमी तो बच्चे लहरों से खेलने में मगन होते हैं। साहिल पर मौजूद शहरी बोले, साहिली मुकाम पर आकर बहुत राहत महसूस होती है। बच्चे समंदर को देखकर बहुत खुश होते हैं। गर्मी का एहसास यहाँ आकर खत्म हो जाता है। शहरी आके यहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं ताकि जो ना वो थोड़ा सा इंजॉय हो सकें, क्योंकि पूरा लगातार हफ्ता ड्यूटी करने के बाद एक दिन मिलता है तो बच्चों के साथ यहाँ के लोग इंजॉय कर लेते हैं। समंदर पे सर हम लोग आते हैं कि अपने मन को थोड़ा ना शांत करें, जो अपने दिल की ना भड़ास निकालें, और शांत होने के लिए यहाँ पे आते हैं ताकि अपन बातें कर सके समंदर से। अपने गुजरावाला के मेहमान को यहाँ पे घुमाने के लिए लाए हैं, समंदर को देख के रिलैक्स फील कर रहे हैं। सीव्यू का साहिल अपने अंदर वो तिलस्म रखता है जिसकी तरफ लोग खिंचते चले आते हैं और अपनी जिंदगी के लम्हात को यादगार बनाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। न्यू पोर्ट इंस्टीट्यूट के BBA तलबा की जानिब से छोटे कारोबार को फ़रोग देने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तख्लीकी सलाहियतों और कारोबारी जहानत के जश्न की तकरीब।
सूबाई वज़ीर शाहनिया अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बताते चलें कि तख्लीकी सलाहियतों और कारोबारी जहानत के जश्न की तकरीब सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट में और सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली जो हैं आज न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट उनकी आमद हुई है और यकीनन तौर पर जो यहाँ की रूह रवा हैं हुमा बुखारी साहिबा, उन्होंने शाहीना शेर अली साहिबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मैं यही कहूँगी आज यूनिवर्सिटी की जो तलबात हैं उनको देख के उनका बहुत अच्छा होता कि मतलब अपने ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम तो कहते हैं ना कि हमें अपने बच्चों को वो कुछ सिखाना चाहिए कि आने वाले वक्त में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एजुकेशन के साथ साथ आईटी के कोर्सेज़ लाजमी होनी चाहिए, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में अपना एक प्रोडक्ट इन लोगों ने लॉन्च किया, बहुत अच्छा लगा और नेक तमन्नाएं इनके लिए कि इन फ्यूचर जो है वो अपने पैरों पे खड़े होकर ये ब्रांड आज जो हमने लॉन्च किया है इन फ्यूचर इसके नाम जो है ना वो हर जगह हम सुने, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की जो है ना एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है और ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए। और मज़ीद मैं चाहूँगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी प्रोडक्ट इसी लॉन्च के आएंगे। तो एक बहुत अच्छा इवेंट था और बहुत ही अच्छा लगा। मैं यही चाहूँगी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा अपने लिए जस्तजू और लगन हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ नीयत की बात होती है और जहाँ पर नीयत शफ़ाफ हो तो अल्लाह ताला खुद ही जो है रास्ते हमवार कर देता है और तमाम तर काम जो है वो बाय तकमील को जा पहुँचते हैं। सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी।